जी शायद बने रहेगा हमारे साथ, एंड बेली थॉमस एज वेल. In its interim order, the Securities and Exchange Board of India details several personal expenses made by Anmol Singh Jaggi, co-founder of BlueSmart and managing director of Gensol Engineering, using company funds. SEBI states that rupees 26 lakh were used for purchasing a golf set and approximately 8 to 9 lakh crore rupees were given to Jaggi's family, and rupees 3 lakh were spent on Make My Trip for personal travels. Belly, we've seen now that how the details that are emerging about this corporate fraud that was done by the Jaggis, Anmol Jaggi, sort of using the funds that were that the investors put in the company for as a piggy bank for personal benefits and personal travels and golf sets and buying luxury apartments. So in terms of that, doesn't that shake the faith of investors and also the people who want to enter, start a business? Ria, the suspension of operations now what the Security and Exchange Board of India's findings that this Gensol company that is closely linked with the BlueSmart Mobility had misappropriated more than 200 crore, and that was designated for the EV acquisition is what we are learning. And Gensol provided EVs to BlueSmart through leasing arrangements, and according to the SEBI, the BlueSmart co-founder Anmol Jaggi had actually diverted rupees 25.76 crore from Gensol to his personal accounts and related entities, and this includes a payment to the third unicorn startup as well, co-founded by Ashneer Grover, the Bharat Pay co-founder as well. And in light of these findings, SEBI has also barred Gensol and its affiliated entities from participating in the securities market and has temporarily disqualified the promoters from holding directorial. So this particular scam has not only hit the BlueSmart Mobility operator startup as such, but it has also affected the investors who had hands on the other startups as well. So going by this, like you already pointed out that this much of amount has been used for personal and for purchasing luxury apartments and such. So this kind of financial irregularities and misconduct is being watched by the Securities and Exchange Board of India, who's taking up with the startup directly as of at this point of time, Ria. All right, Belly, stay with us. We have more developments coming in. Additionally, SEBI's investigations reveal that funds were diverted through entities like Cambridge Ventures to purchase a luxury apartment in DLF Camellias valued at rupees 42.94 crore. शायद अंसारी इनके जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो पैसे यूज़ कर रहे थे, उसमें क्या डिटेल्स इमर्ज कर रही हैं कि वो जो पैसा बचा हुआ था 200 करोड़, वो कहाँ इन्वेस्ट करा गया था? गोल्फ सेट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स DLF में, और कहाँ ये मनी यूटिलाइज किया गया था? देखिए, आपको मैं बताऊं कि कंपनी के नाम पर जो इन्होंने जो लोन लिया था वो अमाउंट था 262 करोड़ रुपए का, और ये 262 करोड़ जो है लोन की टर्म्स एंड कंडीशन में ये बात लिखी गई थी कि ये इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया था। अब जब ये सारी चीजें रही और इतने अमाउंट जब इन्होंने लिया है इस कंपनी के नाम पर, तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनी में ये पैसे लगने चाहिए या इसके ही रिलेटेड जो भी खर्चे होने चाहिए यहाँ होने चाहिए। लेकिन इसके बाद जो है सेबी ने जब अपनी जांच की है तो अपनी जांच में ये पाया है कि इन्होंने जैसा कि आपको मैं बताऊं कि शेयर मार्केट और ये सारी चीजों में जो है इन्होंने ये पैसे इन्वेस्ट किए, और कई जगहों पे जो है जो जांच में जो बात सामने आई है वो इन्होंने इस जगह पर ना इस्तेमाल करके बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, और इसमें कई बड़े शहरों में इन्होंने ये खरीदारी की है और ये सारी चीजें की है जो इस नियम का उल्लंघन करते हैं। सेबी के नियमों के सेबी नहीं बल्कि लोन के भी जो नियम होते हैं उन नियमों में ये बात जो है जरूरी होती है कि आप जिस पर्पस के लिए लोन लेते हैं यानी जिस कंपनी के लिए आप लेते हैं वो पैसे वहीं खर्च होने चाहिए। लेकिन हुआ यह है कि ये दोनों डायरेक्टर्स जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये दोनों डायरेक्टर्स ने इस पैसे को, और ये अमाउंट तकरीबन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का है,
लोन जो लिया गया था वो 262 करोड़ के आसपास था और ये 200 करोड़ रुपए इन्होंने जो है अपने फायदे के लिए और दूसरी जगहों पर जो है इन्वेस्ट किए हैं, जो कि कंपनी के लिए नहीं था। यही बात सेबी जो है अपनी इस कार्रवाई में, अपनी जांच में पाई है कि इन्होंने जो अपने फायदे के लिए ये लोन लिया है, इसका मतलब है कि पहले से इसके लिए प्लानिंग की गई थी, जो यहां ना इस्तेमाल करके बल्कि दूसरी जगहों पर इस्तेमाल करना था। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी पर तो जो है मुसीबत तो आनी ही थी और ये चीजें जो है काफी पहले से चल रही थी। सेबी को इस जांच में जो है जब पता चला तो उन्होंने जो है पहले ही कार्रवाई जो की है उसमें 2 डायरेक्टर्स जो लोग थे, जो शामिल थे इस पूरे मामले में, पहले उन पर कार्रवाई की गाज गिरी। क्योंकि वजह यह थी कि जो पैसे यहां आने थे, जिस कंपनी में आने थे, वो यहां आए तो, लेकिन इस्तेमाल यहां नहीं किए गए बल्कि दूसरी जगहों पे किए गए। तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई सेबी की जो होगी वो उन डायरेक्टरों पे होगी जिन्होंने इस लोन में जो है अहम भूमिका निभाई है। अब सबसे अहम बात यह है कि इस लोन को जो है जो लिया गया है, तो एक तरह से इसमें यह भी देखेंगे कि धोखाधड़ी हुई है, यानी फ्रॉड किया गया है और ये फ्रॉड के जरिए ही ये इतनी बड़ी रकम हासिल की गई है। तो अगली जो कार्रवाई होगी कि संभव है कि अब ये कंपनी जो है दोबारा उठ ना पाए या दोबारा इस कंपनी को जो है संचालित ना किया जा सके। क्योंकि जो पैसे हैं जो वो दूसरी जगह इस्तेमाल किए गए हैं। यही वजह रही है कि जो वॉलेट में जो पैसे जिन कस्टमर्स के रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स के रहे हैं पैसे, और जो ड्राइवर रहे हैं जो इतने ज्यादा तादाद में, उनकी भी जो है सैलरी और बाकी चीजें जो रही है, उसको लेकर भी जो है कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि जो वॉलेट में पैसे हैं उनको वो रिफंड कर सके। उसके लिए भी जो है कंपनी ने 90 दिन का समय मांगा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की हालत अभी फाइनेंशियली बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है। Shahid, stay with us. We have more developments coming in. The Blue Smart company initially did not offer any comments on the issue, and after the electric